So hello my dear students, this is Chandan sir and I welcome you to my channel once again, and in this class we are going to learn one of the most common grammatical item that is common in each and every exams. I am talking about competitive exams. Okay, so in most of the exam papers this item is very common. So if you are preparing for any kind of competitive exams and you are preparing already or you are planning to prepare, so don't worry, you are on the right platform, that you will get the proper help and guidance. So if you have not subscribed the channel yet, now you can subscribe to it and press the bell icon so that you can be notified whenever the new videos will be released. Okay, and in one of my previous videos I said that we are giving free coachings. Okay, we are planning for giving free coachings all competitive exams. Okay, and especially for the WBG and JNPAS. Okay, the students who are preparing to appear for GNM and ENM, medical staff nurse and BHA, they will be helpful very much. Okay, and the other students who are preparing for bank, SSC, MTS, CGLs and other states and central competitive exams, they also be benefited, because you know that English syllabus is almost common in every exams. Okay, there may be slight difference, but most of the cases it is very common in each and every papers. Okay, in each and every exams it is almost similar. Okay, so if you are preparing for any kind of government exams, don't worry, you are on the right platform. Keep it subscribed so that you can be notified whenever there will be new videos will be released. So I am planning one by one, content wise I will teach you so that you can be benefited a lot. Okay, and in today's class I am going to teach you that subject and verb agreement. Okay, you know that this is one of the most easiest item as well as most complicated items, because there are a lot of tricks we need to keep in mind. So I will help you my best. Okay, that is so that you can keep in mind with the easiest tricks. So let's begin today's class. This will be a long class, this will be a long marathon class, so keep your pen and papers ready and keep patience and stay tuned with me. Okay, up to the last, so that you can be learned a lot of things, and today's class is going to be very helpful for you. So just give me a minute. Make yourself ready for the marathon class. Okay, this will be one of the marathon classes. Now keep yourself ready, make yourself ready. There are some, just give me a second. Okay, I think this answer is visible, that there is a first question, one of the cows dash missing. I said that in today's class is on subject verb agreement. Okay, what is subject verb agreement? You know this actually. So let me say in very brief. Okay, subject verb agreement. What is subject verb agreement? You know that there is a bonding, there is a connection between subject and verb. Okay, if there is singular number, the verb will be singular. If there is plural number, the verb will be also plural form. So this kind of bonding, this kind of connection is called one kind of agreement. Okay, or we say subject verb concord. So now in today's class we know that there are some confusing cases where we will get most of the case students confused. So what to write actually, it will be plural subject verb or singular verb, we are get confused. So the thing is that in this class I will make all kinds of doubts clear. So stay tuned with me. Okay, lot of questions we will practice, near about 80 questions we will practice. So stay tuned with me, and I can make sure that you will be definitely very much helpful. So the tricks you have to keep in note down. Okay, you have to note it down. The moment I will explain, you have to note it down. Okay, so the first question is here, one of the cows dash is missing. Already I have written 1 or 2 3 question answers. Don't worry, I am explaining once again.
So what you have to do actually, you have to find out the answer. Okay, you have to find out the answer. One of the cows. Now the question is there are four options: is, was, are, where. Okay, which option will be correct? Which option will be correct? In this case, you have to look one thing, that one is the head word. One is the head word. Okay, one is the head वर्ड. स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक होता है, देखिए स्टूडेंट्स का मिस्टेक जहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो, आप लोग ये देख लेते हो द काउस नहीं देखना चाहिए. एक्चुअली देयर आर मेनी काउस. ओके, देयर आर मेनी काउस बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन काउ. ओके, तो इसलिए ये आपका हेड वर्ड. ठीक है, ये आपका डिटर्मिनर, हेड वर्ड बोल सकते हो और डिटर्मिनर भी बोल सकते हो. तो आपको इसका देखना है. तो वन इज डेफिनेटली सिंगुलर नंबर. वन मीन्स वन. तो यहाँ पे सारे काउस के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे एक काउ के बारे में बोला जा रहा है. तो इसलिए आपको लिखना है इज मिसिंग. ओके, सिंगुलर नंबर होगा यहाँ पे, इज मिसिंग. दो आंसर इज ऑलरेडी रिटन. ठीक है, फिर से मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे इज होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए देखना चाहिए. जहाँ पे वन ऑफ द होगा हमेशा याद रखना, उसी जगह में आपको इज लिखना है. ठीक है, ओके. और चैनल आप शेयर करते रहिए. ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. जिन्होंने कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनको जितना मतलब कॉमन टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स देने के लिए ईजी होगा आपके लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ. और नोट डाउन करते रहिए. ठीक है, कॉपी में ईदर यू और ही हैज़ स्टोलन. ओके, ईदर यू और ही हैज़ स्टोलन द पर्स. ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक रूल है. ठीक है, अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ही और यू और ही, ठीक है, इधर और कनेक्टेड है. ठीक है, तो इधर और नीदर और जहाँ पे होगा आपको क्या देखना होगा, आपको ये नियरेस्ट जो है ना, ये जो नियरेस्ट वर्ब है ये देखना है. ठीक है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है ये देखना है. तो आपको लिखना है इधर यू हैव नहीं लिखना है, यहाँ पे होगा इधर ही हैज़. किस लिए, क्योंकि नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट आपको ये होगा, ये देखना है. तो ही आपका नियरेस्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको इस जगह में होगा हैज होगा. ऑलरेडी आंसर लिखा है तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हैज होगा. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन था लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इधर यू और योर फ्रेंड्स आर गिल्टी. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है, अगर आपको कौन सा देखना है जहाँ पे इधर और कनेक्टेड होगा, आप कैसे सिंगुलर और वर्ब डिसाइड करोगे, कौन सा शब्द डिसाइड करना है. आपको एक बात याद रखना है, मैंने अभी बोला आपको नेक्स्ट बिफोर दिस एग्जाम्पल के लिए, जे आपका और के बाद जो आपको नियरेस्ट वर्ब का पहले जो नियरेस्ट शब्द होगा वो आपको देखना है. तो डैश के पहले नियरेस्ट ए हो रहा है ना, ए तो नहीं हो रहा है, यू तो डिस्टेंस हो गया. यू और के बाद योर फ्रेंड्स लिखा है, तो योर फ्रेंड्स मीन्स मोर देन वन फ्रेंड्स, तो ये आपके यहाँ पे होगा 2. मोर देन जहाँ पे 1 मीन्स प्लूरल नंबर. तो फॉर इन द केस ऑफ प्लूरल नंबर यू हैव टू राइट डेफिनेटली प्लूरल वर्ब, यू हैव टू राइट आर. ओके, इधर यू और योर फ्रेंड्स आर गिल्टी. ओके, एक बात याद रखना, ऐसे ही याद रखना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गिवन अ प्राइज. ओके, हाँ, तो जहाँ पे ईच ईच बॉय एंड ईच गर्ल. ओके, यहाँ पे ईच मीन्स व्हाट, ईच मीन्स that singular number. Okay, maybe there is a group of boys. Okay, but I am not talking about all the boys, I am talking about individually, this boy and this way I am talking about that each boys. Okay, each boys, each of the, each. Okay, तो मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअली बोला जा रहा है. इंडिविजुअली, जहाँ पे इंडिविजुअल मैटर है तो वहाँ पे होगा, आपको हो सकता है एंड बीच में कनेक्टेड है, लेकिन आपको ए देखना नहीं चाहिए. आपको देखना चाहिए ईच बॉय मीन्स ईच के बाद सिंगुलर नंबर होगा,
तो ये भी आपको हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ईच बॉय ईच गर्ल, तो आपको आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? वाज लिखा है तो नहीं होगा। हाँ, हैज़ हैव आर, ठीक है, आर भी आपका नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, ठीक है। हैज़ गिवन प्राइज, मतलब सारे बच्चों को प्राइज मिल गया, ठीक है, हैज़ गिवन प्राइज, ओके। और भी देखिए यहाँ पे ए प्राइज लिखा है, ए प्राइज मतलब अगर आपका एक ग्रुप और कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे ए प्राइज नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पे ए प्राइज भी और भी एक क्लू है, क्योंकि सबको इंडिविजुअली मिला, एक एक करके मिला, ऐसा नहीं एक बॉय को 3 प्राइज मिला और सबको सबको मिल के एक प्राइज मिला, ऐसा नहीं। तो एक एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट हो सकता है, 10 बच्चे हो सकता है, लेकिन सबको एक एक प्राइज मिला, सबको मिला, इंडिविजुअली यहाँ पे बोला जाता है। जहाँ पे ई जो लिखा होगा वहाँ पे हमेशा सिंगुलर नंबर होगा। तो हैज इज सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए हैज होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पानी पी लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द प्रेसिडेंट विथ हिज बॉडीगार्ड्स हैज़ बीन किल्ड। ओके, द प्रेसिडेंट विथ हिज बॉडीगार्ड हैज़ बीन किल्ड। द प्रेसिडेंट विथ हिज बॉडीगार्ड हैज़ बीन किल्ड। तो यहाँ पे आपका जो देखना है एक्चुअली, देखो द प्रेसिडेंट विथ हिज बॉडीगार्ड्स, जहाँ पे विथ होगा, मेन वर्ड के साथ विथ आएगा, टुगेदर विथ होगा, ठीक है, एज वेल एज होगा, तो उसी जगह में आपको ये देखना है। प्रेसिडेंट तो सिंगुलर नंबर है ना, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट लिखा है ये तो आपका मेन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जहाँ पे विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ओके, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ये जहाँ पे होगा आपको ये देखना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट विथ हिज बॉडीगार्ड्स डैश बीन किल्ड। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड्स आप बोल सकते हो सर, यहाँ पे तो बॉडीगार्ड्स तो सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर, तो वर्ब तो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जहाँ पे विथ होगा, टुगेदर विथ होगा, यहाँ पे आपको मेन वर्ड ए नहीं है। प्रेसिडेंट के साथ उनका बॉडीगार्ड्स था, प्रेसिडेंट को मार दिया, ठीक है। विथ हिज बॉडीगार्ड्स हमको ये देखना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट आवर मेन फोकस, ये आपका मेन हेड वर्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे मेन वर्ड, तो मेन वर्ड इज द सिंगुलर नंबर, तो इसीलिए ये भी आपका आंसर सिंगुलर में आएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए अभी क्या होगा आंसर? ये तो पैसिव वॉइस में लिखा है ना, तो डेफिनेटली इस तो नहीं होगा, ठीक है। बीन लिखा है ऑलरेडी, मतलब बीन लिखा है मतलब यहाँ पे और भी नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा तो हैज होगा। प्रेसिडेंट हैज़ बीन किल्ड, HAS हैज़ बीन किल्ड, ओके। I hope you understand, and these lessons are going to be very very essential, so keep it note down, okay. The rules I am explaining at the same time, you should note it down, okay. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अशोका एज वेल एज अकबर डैश कंसिडर्ड ए ग्रेट किंग, ओके। अशोका एज वेल एज अकबर डैश कंसिडर्ड, मैंने अभी क्या बोला था आपको, बोला था जहाँ पे एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इस टाइप का जहाँ पर फ्रेज आएगा तो आपको देखना है यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगा। तो देखिए अशोका एंड एज वेल एज, तो एज वेल एज आपका, ठीक है, ये आपका लिंक कर, लेकिन ये अलग नाउन है, ये भी अलग नाउन है। अशोका एक अलग राजा था और अकबर भी एक अलग राजा था, तो लेकिन कंसिडर ए ग्रेट किंग, देखो फिर भी आपको मैंने क्लू दे दिया, ए ग्रेट किंग, ए और आ ग्रेट किंग, यहाँ पे तो आ लिखा है ना, ये लिखा है देखो। तो ये मीन्स क्या है, ये मीन्स एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है क्या, दे मे बी टू डिफरेंट किंग्स, लेकिन यहाँ पे दे आर कंसिडर आ ग्रेट किंग। अकबर वाज ए ग्रेट किंग एंड अशोका वाज ए ग्रेट किंग्स, ओके।
तो जहाँ पे आप एक ही बात याद रखना सिंपल सी, जहाँ पे एज वेल वाज होगा, टुगेदर होगा, विथ होगा, टुगेदर विथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर। तो भार भी सिंगुलर होगा ना। देखो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, इज, IS इज, अशोका एज वेल एज अकबर इज कंसिडर्ड ग्रेट किंग। अच्छा, इसमें मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का पैसिव वॉइस जिसका नॉलेज नहीं है, पैसिव वॉइस पे देखना चाहिए। पैसिव वॉइस में नेक्स्ट क्लास में कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पैसिव वॉइस सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें जो आइटम्स दिखा रहा हूँ मैं अभी, इसमें हो सकता है आपको पैसिव वॉइस का नॉलेज पूरा नहीं है, इसलिए इज कंसिडर्ड किस लिए हो रहा है ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं आपके लिए, ठीक है, लेसन प्लान बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो ठीक है, आप, मैं समझ सकता हूँ आप लोग करोगे मुझे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेड मास्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल डैश अनाउंस द न्यूज़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बार अच्छे से सीख लीजिए तो आप नहीं भूलोगे यार, एक बार देख लीजिए, ठीक है। द हेड मास्टर एंड द प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखिए द हेडमास्टर लिखा है ना, द हेडमास्टर लिखा है, फिर देखिए द प्रेसिडेंट लिखा है। तो यहाँ पे एक्चुअली रूल है ना, जहाँ पे एंड के आगे और पीछे, ठीक है, नाउन के साथ दा लगा होगा ना, दा होगा और दी होगा, जो भी है, जो भी बोल, दा और दी जो भी बोल सकते हो, दी हेडमास्टर और दी प्रेसिडेंट, ठीक है। दो मीन्स ये अलग अलग दो पर्सन, तो एंड के साथ अलग अलग दो पर्सन लगा रहे ना, इसलिए ये हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग, जहाँ पे एंड कनेक्टेड होगा लेकिन दो अलग अलग पर्सन होगा, ठीक है, और उसके साथ दा लगा होगा, तो उसी जगह में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली भार प्लूरल नंबर होगा, नॉट सिंगुलर नंबर, ठीक है। चलो मैं समझ देता हूँ। द हेडमास्टर एंड द प्रेसिडेंट मीन्स यहाँ पे हेडमास्टर एक अलग पर्सन है एंड द प्रेसिडेंट भी अलग पर्सन है। तो उन्होंने स्कूल में एक न्यूज़ अनाउंस किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हैज़ तो नहीं हो सकता है, ठीक है, हैड भी तो नहीं होगा, पास्ट में नहीं जाएगा, इज भी तो नहीं होगा, आपको ऑप्शन रहता है हैव। किस लिए हैव होगा, क्योंकि दो अलग अलग पर्सन, तो जहाँ पे एंड कनेक्टेड एंड लिंकर होगा और दोनों अलग अलग पर्सन होगा, उसी जगह में हैव होगा, मतलब भार प्लूरल नंबर में आएगा, ठीक है। चलो सपोज यहाँ पे द हेडमास्टर एंड द हेडमास्टर लिखा है, लेकिन लिखा है दा, यहाँ पे दा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे दा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दा नहीं है, दा यहाँ पे मिसिंग हो गया, दा नहीं है। द हेडमास्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल, तो इसी जगह में मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे एक ही व्यक्ति दोनों अलग अलग पोस्ट में है, मतलब जिन्होंने हेडमास्टर हैं उन्होंने भी स्कूल का प्रेसिडेंट है, कोई अलग इंसान नहीं है, मतलब सेम इंसान, सेम व्यक्ति दोनों अलग अलग पोस्ट में है, तो इसका मीनिंग ऐसा आएगा। इन दैट केस भार्ब आपको हो जाएगा सिंगुलर नंबर। इसमें थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टोटल क्लैरिटी होना चाहिए। जहाँ पे दो बार दा आएगा दोनों अलग अलग नाउन के साथ, तो हो जाएगा दोनों अलग अलग पर्सन मीन होगा, लेकिन जहाँ पे पहले दा होगा उसके बाद और किसी पोस्ट के पहले दा नहीं होगा, तो मतलब एक ही इंसान दोनों अलग अलग पोस्ट में है, तो उसी जगह में सिंगुलर नंबर होगा। चलो सेम टाइप के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। द क्वेश्चन नंबर देखो, 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम डैश वन द अवार्ड। अभी ये आपको आंसर बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना टाइम आपको समझाया, ये ऑप्शन आपको जरूर, आपकी ऑलरेडी आंसर आप बोल पाओगे, आई होप, ये आपको बोलना चाहिए। देखो द मैनेजर क्या होगा, तो द मैनेजर, द कैप्टन है, कैप्टन एंड मैनेजर, यहाँ पे लेकिन दा नहीं है यहाँ पे, तो मतलब एक ही व्यक्ति जिन्होंने कैप्टन है उन्होंने ही मैनेजर है, ठीक है, ऑफ द टीम, एक टीम का जिन्होंने कैप्टन उन्होंने ही मैनेजर, तो उनके लिए क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। अभी आपको देखना है कौन सा होगा, हैव तो नहीं होगा, प्लूरल काट देता हूँ पहले, ठीक है।
इज तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। वाज भी नहीं होगा, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, इसलिए हैज़ में हो जाएगा, हैज़ वॉन द अवार्ड। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे द मैनेजर लिखा है, सपोज यहाँ पे द मैनेजर लिखा है, द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम डैश वॉन द अवार्ड, मैं यहाँ पे द लिख देता हूँ आपके लिए। चलो, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? तब आपको ए हो जाएगा, हैव नहीं हो, तब वहाँ पे हैव नहीं होगा, तब वहाँ पे हो जाएगा हैज़, सॉरी हैज़ नहीं होगा, तब उसी जगह में हैव हो जाएगा, ए हैव, उसी टाइम में हैव आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दा नहीं लिखा था ना पहले, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, तो अभी आई थिंक आपको आंसर क्लियर हो गया। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, मैं फिर से आपको लिए रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे दा होगा, जहाँ पे दा कैप्टन दा मैनेजर, इसी टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग पर्सन, जिन्होंने कैप्टन उन्होंने मैनेजर नहीं है, जिन्होंने कैप्टन एक अलग व्यक्ति है और मैनेजर एक अलग व्यक्ति है, तो उसी जगह में दो अलग अलग पर्सन के लिए जहाँ पे एंड देखे कनेक्टेड होगा, तो उसी जगह में वर्ब को हमेशा प्लूरल रखना है। और जिस जगह में दा कैप्टन होगा लेकिन मैनेजर के पहले दा नहीं होगा, मतलब एक ही व्यक्ति दोनों अलग अलग पोस्ट में है, तो उसी जगह, उसी को समझाने के लिए, लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यू आर द पर्सन हु डैश रिटन दिस क्लासिक। यू आर द पर्सन हु डैश रिटन दिस क्लासिक। ओके, यू आर द पर्सन हु डैश रिटन दिस क्लासिक, क्या लिखोगे आप? यू आर द पर्सन हु डैश रिटन दिस क्लासिक। ओके, देखो यू आर द पर्सन, यहाँ पे आपको रूल्स है एक्चुअली यू आर द पर्सन तो लिखा है, तो देखो इसको कहते हैं हम एंटीसीडेंट। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीसीडेंट। ओके, एंटीसीडेंट, जिन्होंने क्लॉज सीखे हो, जॉइनिंग सीखे हो, आप जानते हो एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट एक्चुअली द नाउन जस्ट बिफोर द, ये जो आपको लिंकर है ना, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में डब्ल्यूएच वर्ड के पहले और द कनेक्टर और लिंकर के पहले जो नाउन और प्रोनाउन आता है, उसके लिए उसका हम कहते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट का नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंटीसीडेंट, ओके, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो यू आर द पर्सन यहाँ पे सिंगुलर नंबर है ना, तो इसलिए आपका हो जाएगा आंसर हैज़। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो सपोज यहाँ पे दे आर द पर्सन्स, तो उसी जगह आपको लिखना पड़ता हैव, ऐसे भी हैव। तो जहाँ पे एंटीसीडेंट सिंगुलर नंबर में होगा तो आपको देखना है सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, हैज़ रिटन होगा। हैड तो नहीं होगा क्योंकि पास में तो नहीं जाएगा, टेंस पास में नहीं होगा, और वाज में तो पैसिव वॉइस में नहीं होगा, तो हैव में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखा है, ठीक है। आई होप you are getting these points and you are enjoying, you are learning something, okay, and if you learn something, so I will be really very helpful, and don't forget to mention in the comment sections, okay, the questions you have, you can put, or how do you like this class, or where is the problem you are facing, so don't obviously mention in the comment section, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलो आपके लिए थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। 2/3 ऑफ द बिल्डिंग, मैं पहले यूज कर देता हूँ इसको, अच्छा होगा। देखो 2/3 ऑफ द बिल्डिंग डैश इन रुइन, 2/3, ओके, द यहाँ पे आपको देखना है क्या, 2/3, 2/3, okay, so this portion actually has been destroyed, okay,
सो दिस इज एक्चुअली टू इज अ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर फॉर्म। जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है यहाँ पे, जो एक पोर्शन के लिए आप में यहाँ पे सिंगुलर नंबर काउंट होना चाहिए, 2/3, ठीक है, 2/3 लिखा है यहाँ पे, मतलब 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा से 2 हिस्सा यहाँ पे यहाँ पे जो 2 पार्ट को हमें एक साथ मेजरमेंट कर ले, मतलब मतलब अगर एक बिल्डिंग का तीन भाग में डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में, और जैसे आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो इसका जो टोटल जो 3 पोर्शंस है, इसका 2 भाग मतलब जस्ट हो गया 2 भाग को हम इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं कर रहे, इंडिविजुअली नहीं ले रहे हैं, इसको होल टुगेदर ले रहे हैं, मतलब टोटल इसका 2 पोर्शन, ठीक है। 3 से मतलब 2 पोर्शन आपको मतलब एक टोटल अमाउंट, एक मेजरमेंट के लिए आपको सिंगुलर नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते 2 पोर्शंस आर डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं, सिंगुलर नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल टुगेदरनेस यहाँ पे समझा जाए, टुगेदरनेस, ठीक है। तो इसी जगह में आपको हो जाएगा डेफिनेटली, ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा सिंगुलर नंबर में आएगा। तो सिंगुलर नंबर में आपको ये अभी देखो ना, अभी पहले एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन, कहाँ पेन चला गया, पेन कहाँ चला गया भाई, ठीक है। अच्छा ये तो वायर तो नहीं आएगा, मैंने बोला सिंगुलर नंबर में आएगा, तो आर भी तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी हैज़ और वाज देखना है, अभी आपको एक कन्फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में होगा और पास्ट में होगा और प्रेजेंट में होगा, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट में आएगा, सॉरी पास्ट में आएगा, वाज रूइन आएगा, हैज़ रूइन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, वाज रूइन रूइन, ठीक है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा वाज में आ जाएगा, इसमें सिंगुलर प्रेजेंट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो न्यूज़ डैज एब्सोल्युटली बैड न्यूज़, ठीक है, नो न्यूज़ एब्सोल्युटली बैड न्यूज़। नो न्यूज़ देखो, आपको ये सुन के लगेगा न्यूज़ लिखा है तो न्यूज़ तो पूरा नंबर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ वर्ड्स है जिसके साथ एस आता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसके साथ तो एस आता है ना, ये इसका स्पेलिंग ही ऐसा ही है, तो इसलिए आपको ये इसको देख के घबराना नहीं है। इसका जो आंसर होगा एक्चुअली, इसका जो आंसर होगा सिंगुलर नंबर में ही आएगा, ठीक है। प्लूरल नंबर में नहीं आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा, ठीक है। तो अभी सिंगुलर नंबर होगा तो आप फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। अभी मेरे साथ भी आप भी कोशिश कीजिए, कितना टोटल 78 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी मेरे साथ टोटल 78 क्वेश्चन। तो द न्यूज़, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, द न्यूज़ डैश एब्सोल्युटली हैड न्यूज़, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, हैज़ बीन तो नहीं होगा, अरे हैव तो नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, ईज होगा ना, दोनों ही एब्सोल्युटली बैड न्यूज़। मतलब कोई ऐसा न्यूज़ कॉम्प्लीटली बैड न्यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये आपको आंसर बोलना चाहिए, मैंने आपको पहले बोला था, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो पूरा क्लास हमारा बेकार हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं देखना चाहिए एक बार, ठीक है। रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है एक बार देखना चाहिए। हाँ रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा मैंने आपको बोला था अभी, जो इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, वहाँ पे था, मैंने बोला था जहाँ पे एज वेल एज होगा ना, वहाँ पे हमेशा सिंगुलर में आएगा। तो अभी आंसर फटाफट बोल दीजिए, क्या होगा आंसर आपका, आयरन एज वेल एज डैश अबंडेंट इन इंडिया। तो बोलो बोलो फटाफट बोलो क्या होगा, वाच तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में इतना सारे कोल एंड आयरन है, तो आपको वाज नहीं लिखना है, ठीक है। हैज़ तो नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं होगा, हैव भी तो नहीं होगा, तो ईज होगा ना,
ईज आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ पे ईज एंड ईज सॉरी जहाँ पे एज वेल एज होगा तो उसी जगह में आपको सिंगुलर वर्ब आएगा। अभी आपको टेंस देखना चाहिए, कौन सा टेंस में आएगा ना, वो भी देखना चाहिए आपको। पैसिव फॉर्म में होगा कि आपको प्रेजेंट टेंस में होगा वो भी देखना चाहिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस में होगा देखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर जजमेंट। ओके, ये देखो द जूरी। थोड़ा रुकिए, मैं पहले इसका कलर पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। पेन का कलर थोड़ा ब्राइट देना चाहिए तो इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, तो देखो तो यहाँ पे देखो दा जूरी लिखा है ना, दा जूरी। क्लू आपको दे दिया, देखो देयर जजमेंट, मतलब यहाँ पे जूरी इट्स नॉट ए सिंगुलर नंबर, ठीक है। द जजमेंट द टीम ऑफ द बोर्ड ऑफ द जूरी मीन्स यहाँ पे जज जो है ना, जो राय देता है, तो जो वर्डिक्ट देता है, उन्होंने वहाँ पे अकेला नहीं है, उनका जो टीम है दिस इज कॉल्ड जूरी। सो दे एक्चुअली इट्स अ प्लूरल नंबर, द जूरी इज ए प्लूरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लू दे दिया, देखो देयर जजमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे द जूरी इज एक्चुअली प्लूरल नंबर। और ऑलरेडी आपको क्लू भी दे दिया, तो डेफिनेटली इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ का आंसर क्या होगा बोलो? ईज तो नहीं होगा, ऑप्शन पहले एलिमिनेट करो। ईज तो नहीं होगा, उसके बाद आपका वाज भी नहीं आएगा सिंगुलर नंबर में। अभी हैव और आर, हैव लिखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, और आर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, ये पैसिव वॉइस में क्यों होगा, पैसिव वॉइस में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव डिवाइडेड इन देयर जजमेंट, ठीक है, इन देयर जजमेंट। आर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये जो वर्ब है ना नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए डिवाइडेड इज नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। तो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हैव होगा। पैसिव वॉइस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए पैसिव वॉइस लेके आऊँगा, ठीक है। 3 इडियट्स दैट्स माई फेवरेट मूवी। अब बताओ फटाफट मूवी। 3 इडियट्स मूवी तो मुझे लगता है सारी देखे हो, ठीक है। बहुत चेतन भगत का बहुत मोस्ट पॉपुलर मूवी, ठीक है, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर मूवीज़। तो आप बताओ अभी आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, बोलो 3 इडियट्स, बोलो कौन सा आंसर का, बोलो फटाफट बोलो। ईज होगा, वाज होगा, आर होगा, बोलो कौन सा होगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा आंसर मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 एक्चुअली इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द जूरी डैश डिवाइडेड इंटू द जूरी डैश डिवाइडेड इंटू द जूरी डैश डिवाइडेड इन द जजमेंट। ओके देखो जूरी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे लिखा है द जूरी। तो द जूरी मैं पहले बोल देता हूँ, द जूरी आपका सिंगुलर नंबर नहीं है, ये आपका प्लूरल नंबर। फिर आपको क्लू देता हूँ देयर जजमेंट, तो मतलब यहाँ पे जज का जो बोर्ड है, जो पैनल है एक्चुअली वहाँ पे एक से ज़्यादा जज है, तो इसलिए ये आपका जूरी मीन्स यहाँ उनका जो टीम, ठीक है, समझा रहे होल, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा टोटल सिंगुलर नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा, सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर होगा। तो यहाँ पे देयर भी लिखा है, तो देयर मीन्स कोई किसी अकेला के नहीं है ना,
ये दे से कनेक्टेड है तो प्लूरल नंबर होगा। तो देखो अभी तो सिंगुलर एलिमिनेट कर दीजिए, वाज नहीं होगा। अभी आपको हैव और आर का बीच में कॉन्फ्यूजन हो सकता है, क्या होगा, ये पैसिव वॉइस में होगा और हैव में होगा, ठीक है, ये देखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा, ठीक है। द जुरी आर डिवाइडेड इन देयर जजमेंट, ये आपका पैसिव फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का सेंस यहाँ पे होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में पैसिव वॉइस का क्लास लेके आऊँगा तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो डिवाइडेड लिखा है यहाँ पे आर होगा, आर डिवाइडेड पैसिव वॉइस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 3 इडियट्स डैश माई फेवरेट मूवी। 3 इडियट्स डैश माई फेवरेट मूवी, क्या होगा बोलो फटाफट। 3 इडियट्स डैश माई फेवरेट मूवी, मूवी का नाम ही है। यहाँ पे 3 इडियट्स का जो लिखा है देख रहे हो आप, ये एक यहाँ पे एस लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऐसे देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका मूवी का नेम ही ऐसा है। तो यहाँ पे आपको ईज लिखना है, ठीक है, ईज IS, वाज नहीं होगा क्योंकि आपका फेवरेट मूवी था ऐसा नहीं, फेवरेट मूवी है अभी, हैज़ भी नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, तो ईज आपका राइट आंसर होगा, ईज। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर और। देखो इधर यू और ही डैश गॉन टू द मार्केट। देख मैंने अभी बोला था क्या, आपको क्या देखना है, आपको देखना है इसका जो नियरेस्ट, ठीक है, ये जो भार्ब के जो और के बाद जो भार्ब आएगा, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर होगा ना, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ईज तो नहीं होगा, आर तो नहीं होगा, हैव तो नहीं, सॉरी हैव तो नहीं होगा, अरे आर तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। इधर यू और ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 क्वेश्चन, 16 नंबर। द ओल्ड डैश गिवन सर्टेन फैसिलिटीज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। द ओल्ड मीन्स क्या है, यहाँ पे द ओल्ड देख के आप घबराना नहीं है। द ओल्ड मीन्स यहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं है, द रीज द ओल्ड, ए मीन्स क्या, ओके, ए मीन्स प्लूरल नंबर, बिकॉज दे आर इंडिकेटिंग, दे आर रेफरिंग ए होल कम्युनिटी, ओके, ये होल कम्युनिटी। द ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द ओल्ड, ओल्ड इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले द होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर। द रीच द पुअर, ओके, एडजेक्टिव का पहले द होगा तो हो जाएगा प्लूरल नंबर, क्योंकि इट इज़ रेफरिंग ए होल कम्युनिटी। देखो यहाँ पे देखा जाए द ओल्ड फैसिलिटीज, ओके, हाँ, तो यहाँ पे प्लूरल नंबर होगा तो क्या होगा, इज तो नहीं होगा, वाज भी तो नहीं होगा, ठीक है, आर और पास में तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले दिया था फैसिलिटीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी भी देता है, आर गिवन सर्टेन फैसिलिटीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर देखिए। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश एंटरटेन इन द होटल। मैंने बोला था आपको जहाँ पे ईच एवरी कनेक्टेड होगा उसी जगह में आपको सिंगुलर नंबर देखना है, ठीक है, सिंगुलर नंबर होगा। तो एवरी आपको एवरी मैन एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट सिंगुलर नंबर एलिमिनेट करें, इसको काट दीजिए। आर तो प्लूरल में चला गया। अभी आप देखो कौन सा टेंस में लिखोगे आप, इज एंटरटेन, वाज एंटरटेन, ओके, हैज़ एंटरटेन। बोलो अभी टेंस देखना है, प्रेजेंट टेंस में होगा और पैसिव वॉइस में होगा और परफेक्ट टेंस में होगा। एवरी मैन एवरी वुमेन चाइल्ड एंटरटेन इन द होटल, मतलब हमेशा यहाँ पे होता है, ऐसे इस टाइप का सेंस आ रहा है, तो इसी जगह में होटल में हमेशा एंटरटेन इनको दिया जाता है,
एंटरटेन इनको मिलता है। तो जहाँ पे डेली होता है, रेगुलर होता है, इसी जगह में सेंस में लिखते हैं हम, प्रेजेंट टेंस लिखते हैं ना, इज एंटरटेन, ये भी नहीं होगा। मतलब पास्ट में आपको ऐसा एंटरटेन उनको एंटरटेन दिया जाता था, ऐसा नहीं, अभी भी उनको एंटरटेन वहाँ पे मिलता है, एंटरटेन उनको करते हैं, तो हैज़ तो नहीं होगा, मतलब अभी एंटरटेन उनको किया था, ऐसा नहीं, ठीक है, हमेशा होता है तो ईज होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पीपल डैश टू ओबे द लॉ, ठीक है, ये देखो, पीपल डैश टू ओबे द लॉ। पीपल क्या है, पीपल आपका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ऐसा कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। पीपल आपका हमेशा प्लूरल नंबर में आएगा, ठीक है। पीपल हैज़ टू तो नहीं होगा, इज टू तो नहीं होगा, आर टू तो नहीं होगा, हैव टू होगा। किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हैव टू ओबे, मतलब हैव टू आर टू में डिफरेंस क्या होता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज ए कंपल्सन, और आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सेंस है, आई एम टू गो देयर और आई हैव टू गो देयर, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आई पीपल हैव टू ओबे द रूल, ये कंपल्सन है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हैव होगा ना। ये आप बताओ क्वेश्चन नंबर 19, ईच ऑफ द थीव्स डैश पनिश्ड, बोलो ईच ऑफ द थीव्स डैश पनिश्ड, यहाँ पे आंसर क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला था, ईच जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, सिंगुलर नंबर, ये आपको देखना नहीं है। यहाँ पे थीव्स का बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थीव्स का बारे में बोला जा रहा है, लेकिन इज थीव मतलब अलग अलग सिंगुलर, इज थीव, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस मैन, दिस मैन, दिस मैन, तो यहाँ पे एक एक करके बोला जा रहा है, अलग अलग करके, इंडिविजुअली। तो जहाँ पे इंडिविजुअलनेस है तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली सिंगुलर नंबर होगा, ओके। ये पैसिव वॉइस में आएगा, मैं बोल तो ईच जहाँ पे होगा, ईच ऑफ द जहाँ पे होगा सिंगुलर नंबर होगा, तो आर काट दीजिए, आर काट दीजिए, ठीक है, तो नहीं आएगा। अभी हैज और वॉज है तो पैसिव वॉइस में होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, बोलो। थीप को पकड़ लिया, उसको पनिशमेंट दिया, ठीक है, बोलो इस टाइप को सेंस में क्या होगा। बोलो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये आपका इस यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ बीन यहाँ पे होता तो फिर भी थोड़ा सा करेक्शन होता, लेकिन यहाँ पे बीन तो नहीं लिखा है तो इसलिए वाज में ही एप्लीकेट होगा आपका, ये आपका पैसिव वॉइस में आएगा। और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस पास्ट का प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में आएगा। ये भी हो सकता है, ये अगर यहाँ पे ऑप्शन होता बीन पनिश्ड होता तो यहाँ पे हैज़ करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे बीन तो लिखा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वाज, ठीक है। इन्होंने पास्ट में इनको पकड़ लिया था और उसी टाइम उनको पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में उनको पनिशमेंट भी मिल गया, ठीक है। तो वाज पनिश्ड, ईच ऑफ द थीव वाज पनिश्ड, इनको सजा मिल गया, ठीक है, इनको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो आज तो हैज़ यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस तरह से आपको देखना है। अगर यहाँ पे बीन नहीं है तो ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, ये पास्ट में चला जाएगा और उसका पैसिव वॉइस में आएगा। चलो, मिस्टर जोन्स टुगेदर विथ हीज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग कार्ड्स, मिस्टर जोन्स टुगेदर विथ हीज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग कार्ड्स, मिस्टर जोन्स टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ पे टुगेदर विथ होगा, मैंने शुरुआत में बोला था जहाँ पे टुगेदर विथ होगा तो उसी जगह में आपको डेफिनेटली ए नहीं लिखना है, आपको ए देखना है, मिस्टर जोन्स। फिर भी जोन्स एक नाम है, मिस्टर जोन्स, जोन्स किसी का सारनेम है, ठीक है, इसका सारनेम के साथ एस लगाया, इसका मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है ए भी प्लूरल नंबर हो जाएगा, नहीं, इसका ये सारनेम है, एक सिंगल पर्सन का नेम ही ऐसा है मिस्टर जोन्स। जैसे मैथमेटिक्स के बाद एस आता है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है अलग अलग शब्द, ठीक है। डेफिनेटली
मिस्टर जोन्स टुगेदर विद फ्रेंड्स प्लेइंग डार्ट्स। ओके, तो हैज़ तो नहीं होगा, यहाँ पे आईएनजी लिखा है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगा। ओयर तो नहीं होगा, आर तो नहीं होगा, यहाँ पे ईज होगा क्योंकि सिंगुलर नंबर में आएगा, तो ईज प्लेइंग होगा ना। ठीक है, ये आपको बोलना चाहिए। तीसरा डैश टू स्कूल एवरीडे। प्ले तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन बेकार दे दिया है, प्ले कैसे होगा, प्ले नहीं होगा। तीसरा डैश टू स्कूल एवरीडे, बोलो बोलो तीसरा कौन सा नंबर, तीसरा तो सिंगुलर नंबर है ना, तो डेफिनेटली वर्क्स होगा। ठीक है, हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, चलो साउंड में कुछ प्रॉब्लम होता है, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि लॉन्ग क्लास मैराथन क्लास थोड़ा सा देखना चाहिए, देखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। ठीक है, नहीं तो पूरा क्लास बेकार हो जाएगा। Now look at the question number 22. Okay, this is question is that Mita's brothers dash with each other. Okay, in this questions now you have to think about that what is the quantifier, what is the head word. Okay, what is the head word. So यहाँ पे Mita's brothers, नाउ मीता's ब्रदर्स, मीता का बारे में यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मीता का भाई मतलब इनका जो भाई है उसका भैया का बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीता का मोर देन और टू भाई और मोर देन मतलब टू ब्रदर्स। ठीक है, ऐसा है। तो मीता 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 यहाँ पे जस्ट फॉर मीन्स यहाँ पे मतलब कोई इसका कुछ रेफरेंस मान सकते हो, इसका कुछ मीता का, अगर मीता मीता का एक उसका आइडेंटिटी के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे डिटरमिनर ये आपका ब्रदर्स। ठीक है, एक सेकंड पेन थोड़ा देख लेता हूँ। ये देखो ब्रदर्स आपका मेन। ठीक है, ये आपका ब्रदर्स जो मैं अंडरलाइन किया, ब्रदर्स एक्चुअली ये आपका सब्जेक्ट, तो इसका हिसाब से आपको लिखना है। ओके, मीता's ब्रदर्स डैश विथ ईच अदर, तो ये प्लूरल नंबर, ब्रदर्स लिखा है, एस लिखा है, तो प्लूरल नंबर, सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट द प्लूरल वर्ब। स्लीप तो नहीं होगा, स्लीप कैसे होगा, स्लीप मीन्स ये भाई सारे भाई इतना ही अच्छा नहीं है जो एक दूसरे के सो जाते हैं, इतना नहीं, फाइट करता है, फाइट प्रॉपर्टी के लिए फाइट करता है, स्लीप नहीं होगा। ठीक है, ये बेकार का ऑप्शन दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी दे देता है। तो मेन जो आपको देखना है फाइट और फाइट्स, तो फाइट्स तो सिंगुलर नंबर हो गया, तो आपका राइट आंसर होगा फाइट। ओके, टोटल हमें कितना क्वेश्चन करना है, 78 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ हर इंटरेस्ट से समझना चाहिए, तो आपको कंटेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक बढ़िया नॉलेज मिल जाएगा। जो आपको जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में आपके लिए बहुत ईजी होगा। इस ट्रिक को फार्मूला को याद रखिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ सेम चीज़ को ऐसे दिमाग में रखिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जॉन एंड एलिस डैश टू चार्ल्स एवरी डे। ओके, मैंने आपको बोला था इससे पहले जॉन एंड एलिस, यहाँ पे एंड लगा है तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे एंड लगा है ना, तो आंसर क्या होगा, दो अलग अलग पर्सन है, डेफिनेटली दो अलग अलग पर्सन सेम चीज़ को नहीं समझा रहा है। ठीक है, सेम व्यक्ति नहीं है, तो हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो वॉक्स तो नहीं होगा। ठीक है, वॉकिंग भी तो नहीं होगा, गोज भी नहीं होगा, और गो होगा। किस लिए, क्योंकि गो इज ए प्लूरल वर्ब। ओके, वॉक सिंगुलर नंबर, वॉकिंग तो ये इसका कोई ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक से एप्रोप्रिएट नहीं है, तो गोज भी नहीं होगा, ये सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसलिए नहीं होगा, तो इसलिए गो आपका हो जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, गो आपका एप्रोप्रिएट आंसर। ब्रेड एंड बटर डैश गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स है ना, ब्रेड एंड बटर इज नॉट ए सिंगुलर थिंग, मीन्स सॉरी ब्रेड एंड बटर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो एक बार, ब्रेड एंड बटर, इसमें दो अलग अलग आइटम है एक्चुअली, बटर इज डिफरेंट थिंग एंड ब्रेड इज डिफरेंट थिंग्स, बट whenever we take it as a breakfast, okay, we consider it as a same, okay, bread and butter in combined together it is the same thing, so
and it indicates a same thing. That's why it will be actually a singular. It will be singular. It will be singular actually. Okay. Whenever two things will be joined by and it will indicate the same thing. In this case, we have to use the singular number. Understand? Whenever it will be two different things, but it will mean the same thing. In this case, we have to use singular verb. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, पहले एलिमिनेट करो, काट दीजिए, नहीं होगा। उसके बाद आपको रहते हैं मेक प्लूरल वर्ब हो जाएगा, मेक्स आपका हो जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द हेडमास्टर एंड एज वेल एज द हेडमास्टर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। ओके, द हेडमास्टर एज वेल एज, मैंने आपको बोला था जहाँ पे एज वेल एज होगा, जहाँ पे टुगेदर विथ होगा, जहाँ पे विथ होगा, उसी जगह में आपको देखना है एक्चुअली सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, अगर ये आपका ये जो मेन वर्ड है ना, ये आपका डिटर्मिनर। ठीक है, अगर ये यहाँ पे प्लूरल होगा तो भार्ब आपको होगा प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो यहाँ पे भी भार्ब आपको सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, तो एज वेल एज के बाद में जो पोर्शन आएगा, जो सब्जेक्ट का नंबर होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। आपको ये देखना है एज वेल एज के पहले जो लिखा है ये सिंगुलर फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो भार्ब हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर में हो जाएगा, और इफ सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर शब्द है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो देखो यहाँ पे हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिखा है, हेडमास्टर इज ए सिंगुलर नंबर। ओके, सिंगुलर, तो भार्ब भी सिंगुलर लिखना है। ओके, तो अभी पहले काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हैव प्लूरल फॉर्म आता है, ये भी नहीं होगा। वाज और हैज़, ये दोनों में आपको डिसाइड करना है। आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा होगा? अभी तो सिंगुलर लिखना है, लेकिन कौन सा लिखोगे? हैज़ प्रेजेंट का नहीं होगा, हैज़ प्रेजेंट ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। ओके, हैज़ प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आता है, मतलब ईज प्रेजेंट हो सकता है और वाज प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ईज तो नहीं है, तो अपोजिट एक्शन हो जाएगा हैज़। ये परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा। ठीक है, और हैज़ प्रेजेंट लिखेगा तो कुछ मीनिंग नहीं आएगा, तो बाकी आपका ऑप्शन रहते हैं वाज, तो अब जो वाज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा पेज स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा। Just a minute, let me set up the page actually. Okay, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हाँ हो जाएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 विथ मिस्टर रॉय कमिंग टुमारो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? मैंने तो बोला आपको हेड वर्ड देखना है, तो यहाँ पे हेड वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है? यहाँ पे देखो, पेन पेन कहाँ गया, एक सेकंड, पेन आना दीजिए। ओके, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली देखो द स्टूडेंट जो है ना, ये जो द स्टूडेंट 26 क्वेश्चन, द स्टूडेंट आपका यहाँ पे मेन वर्ड, सॉरी द स्टूडेंट। ओके, आपको ये देखना है मेनली, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 किसके साथ आ रहा है, ये मैटर नहीं है। ये देखो ये कौन सा नंबर में है, ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो आपका वर्ब हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। ओके, यहाँ पे एन के तो नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, तो आर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये में टुमारो लिखा है। टुमारो मीन्स दैट इट्स अ नियर फ्यूचर, व्हेनेवर वी मीन दो इज फ्यूचर टेंस। ओके, टुमारो इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, बट टुमारो यहाँ पे एक्चुअली जो टुमारो लिखा है यहाँ पे नियर फ्यूचर समझा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, नीदर ही और आई डैश आ फूल। ओके, आपको आंसर क्या देखना, नीदर, मैंने आपको बोला था इससे पहले नीदर ही। ठीक है, आपको मेनली क्या देखना है, आपको देखना है इधर और नीदर नॉर जो होगा, और के बाद और नॉर के बाद जो आपको आएगा उसी का अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो उसी का अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब डिसाइड करना है। तो यहाँ पे तो इज नहीं होगा,
ठीक है। ओ आर भी नहीं होगा क्योंकि आई के साथ ओ आर नहीं लगता है, ईज भी नहीं लगता है और आर भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वाज। तो निदर ही और आई वाज ए फुल, मतलब दोनों में कोई बेवकूफ़ नहीं था। ठीक है, इसी टाइप का मीनिंग आ रहा है, तो वाज हो जाएगा यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 and 2 -4, ठीक है, 2 and 2, यहाँ पे बताओ 2 and 2, यहाँ पे जो 2, यहाँ पे जो 2 लिखा है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जैसे हैं, तो यहाँ पे 2 and 2 दो अलग अलग, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सेम चीज़ को समझा रहा है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा एक्चुअली 2 and 2 सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 and 2। देखो सिंगुलर वर्ब, देखो मार तो नहीं होगा, वेयर तो नहीं होगा, मेक तो नहीं होगा, बाकी रहता है आपको मैक्स। ठीक है, 2 and 2 मैक्स 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट डैश प्रेजेंट। ओके, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट, देखो द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट, तो दो यहाँ पे एंड बीच में है, तो एंड इज ए कनेक्टर एंड इट इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट नाउन्स, दैट मीन्स टू डिफरेंट पर्सन। तो ये डेफिनेटली आपका वर्ब जो होगा ये प्लूरल फॉर्म में जाएगा। तो क्या होगा अभी यहाँ पे जो होगा, हैव बीन तो नहीं होगा, ओके, इज तो नहीं होगा, वाज तो नहीं होगा, वेयर प्रेजेंट। ओके, टू सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट वर प्रेजेंट। ओके, द हॉर्स एंड द कैरेज डैश ए यूजफुल को फ्रेंडली व्हीकल। तो देखो यहाँ पे हॉर्स एंड कैरेज, आपको क्या लगता है हॉर्स एंड कैरेज टू डिफरेंट थिंग्स? नो, हॉर्स पहले चलता है, उसके पीछे जो कैरेज है वो लेके जाता है। ठीक है, मतलब वो गाड़ी खींच के लेके जाता है, तो इसलिए वो कनेक्टेड है। मीन्स ये जो टैक्टू का गाड़ी है इसको समझा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपको सेम चीज़, मतलब दो अलग अलग चीज़, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो हॉर्स एंड कैरेज एक्चुअली मीनिंग दैट या सेम थिंग। ऐसा माइंड में नहीं था हॉर्स एंड कैरेज मीन्स हॉर्स अलग कैरेज अलग, नहीं नहीं, जो घोड़ा का जो गाड़ी होता है इसको समझा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, देखो सिंगुलर अभी एलिमिनेट करो, पहले फटाफट एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सिंगुलर। ओके, इज, ओके इज हो जाएगा आपका आंसर। इधर यू और योर सिस्टर अलाउड टू गो। ठीक है, आपको मैंने बोला था जहाँ पे इधर और होगा, और के बाद जो आएगा उसका अकॉर्डिंग निकला हो लिखना है। अगर यहाँ पे प्लूरल नंबर होगा तो भार भी प्लूरल होगा, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो ए भी सिंगुलर में होगा। तो अभी यहाँ पे लिखा है योर सिस्टर, योर सिस्टर क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर, क्या होगा सिस्टर सिंगुलर नंबर। तो पहले ऑप्शन काट दीजिए, आर आर काट दीजिए। अभी यहाँ पे एम भी नहीं, एम तो नहीं आएगा क्योंकि सिस्टर के साथ एम नहीं आएगा, इज। ओके, इज द राइट आंसर। ओके, हो गया। प्रिया along with her parents, okay, dash gone to see the movie। प्रिया along with her parents dash gone to see the movie। प्रिया along with her parents, okay। अच्छा, जहाँ पे along with होगा, जहाँ पे together with होगा, जहाँ पे as well as होगा, आपको देखना है मेन हेड वर्ड। तो प्रिया को यहाँ पे प्रिया मेन, प्रिया इज मेन, मेन पर्सन। प्रिया के साथ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है वो मैटर नहीं है, प्रिया इज द मेन मैटर। प्रिया का बारे में कॉन्सर्न है यहाँ पे, तो प्रिया इज द मेन वर्ड, मेन पर्सन। तो प्रिया डेफिनेटली अ सिंगल, ए सिंगुलर नंबर, ओके, वन पर्सन। तो प्रिया के साथ यहाँ पे पहले तो प्लूरल नंबर नहीं होगा, तो काट दीजिए। ओके, हैज़ गॉन टू, हैज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहता है 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। मैनी ए फ्लावर डैश ब्लूम्स इन द गार्डन इन माई हाउस। ओके, ओके, मैनी अ फ्लावर, इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनी ए फ्लावर मतलब इन द गार्डन देर आर मैनी फ्लावर्स, लेकिन सारे फूल्स नहीं, एक फूल वहाँ पे ब्लूम हो गया, मतलब फूल गया, ब्लूम प्रॉस्पेरस हो गया इन द गार्डन इन माई हाउस, उनका
घर का बागान में एक फूल ब्लूमिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ए फ्लावर, ओके, ए फ्लावर डेफिनेटली सिंगुलर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेनी काउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नंबर ए फ्लावर, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको सिंगुलर नंबर होगा। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। पेन कहाँ चला गया? ओके, एक सेकंड। ओके, आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? मैनी ए फ्लावर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो 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 ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली सिंगुलर नंबर होगा ना, तो हो जाएगा आपका हैव तो नहीं होगा, पहले काटो इसको, ठीक है। तो ईच तो नहीं होगा क्योंकि फूल ऑटोमेटिकली ब्लूम होता है, इसको कोई नहीं करता है। आवाज़ भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ ब्लूम्ड, ओके। ऑल ऑफ द बनानास डैश रोटन, ठीक है, ऑल ऑफ द बनानास डैश रोटन। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ऑल ऑफ द होगा आपको क्या देखना है, जहाँ पे ऑल ऑफ द होगा वहाँ पे आपको देखना है एक्चुअली ऑल ऑफ द के बाद सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है, ठीक है। सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ऑल ऑफ द बनानास क्या होगा, पहले सिंगुलर नंबर बनानास प्लूरल नंबर होगा, तो सिंगुलर नंबर को काट दीजिए, वास को काट दीजिए, ईज को काट दीजिए, बाकी रहता है क्या, वेयर, ठीक है। क्योंकि ऑल ऑफ द, यहाँ पे ऑल ऑफ द के बाद जो नंबर होगा उसी का अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो यहाँ पे वेयर एक्चुअली द राइट आंसर, ठीक है। नीदर ऑफ दिस 5 मैन, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नीदर ऑफ दिस 5 मैन। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेता हूँ, क्या हो गया, स्टिल क्या हो गया, एनीवे, नीदर ऑफ दिस 5 मैन, ओके, नीदर ऑफ दिस 5 मैन, क्वेश्चन के ऊपर नहीं क्यों जा रहा है, ओके 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 ओके, ओके, नीदर ऑफ दिस 5 मैन डैश माई फादर। तो यहाँ पे 5 पर्सन्स है, तो अगर इस 5 पर्सन के बीच में कोई इसका पापा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 5 पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा है, उनका पापा के बारे में बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली सिंपल चीज़ याद रखिए, जहाँ पे निदर ऑफ होगा, जहाँ पे इधर इधर ऑफ निदर ऑफ होगा, ईच ऑफ, तो ईच ऑफ, निदर ऑफ, ईच ऑफ, इसी जगह में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्टिकुलर थिंग और दैट पार्टिकुलर पर्सन। सो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बोला जा रहा है सिंगुलर, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो पहले प्लूरल काट दीजिए, आर भी काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हैज़ तो नहीं होगा क्योंकि हैज़ का मीनिंग कुछ नहीं होगा, हैज़ माई फादर तो नहीं होता है, तो यहाँ पे ईज माई फादर होगा, मतलब इस 5 व्यक्ति में कोई मेरा पापा नहीं है, ईज होगा, ओके। इधर यू और श्रुति डैश टू बी पनिश्ड, ओके, बताओ मैंने क्या बोला था आपको, क्या देखना है, आपको देखना है और के बाद सिंपल सा फंडा, सिंपल सा रूल याद रखिए, और के बाद आपको जो आंसर आएगा, सो जो सॉरी जो जो आपको जो सब्जेक्ट होगा उसी का अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, डैश टू बी पनिश्ड, बोलो बोलो, सिंगुलर होगा ना, पहले पहले बताओ सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, डेफिनेटली सिंगुलर होगा, तो प्लूरल नंबर काट दीजिए, और काट दीजिए, बाकी आर भी काट दीजिए। देखो अभी ऑप्शन आपको बचा है एक ही ऑप्शन, तो लिख दीजिए इज, ठीक है, इज टू बी पनिश्ड। ऑल ऑफ द क्रॉप डैश रोटन इन द फील्ड, ठीक है, सारे मतलब जो खेती था, जो फसल था, सारे सारे मतलब हाँ रोटन हो गया, तो स्पॉइल हो गया, डैमेज हो गया। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ पे ऑल ऑफ द होगा तो उसी जगह में आपको देखना है क्या, जो नाउन है ना, ये आपको इसका अकॉर्डिंग लिखना है। क्रॉप यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, इट इज एक्टिंग एज ए अनकाउंटेबल नाउन, सो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, जैसे वाटर, शुगर, हेयर,
ऑलवेज सिंगुलर नंबर। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंगुलर नंबर। तो पहले एलिमिनेट करो, काट दीजिए इसको, इसको छांट के बाद डिलीट कर दीजिए, आर भी नहीं होगा, ठीक है। इज रिटन नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट में जाएगा, पास्ट में अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑल ऑफ द क्रॉप वाज रिटन इन द फील्ड, ठीक है, वाज रिटन। टेंस का थोड़ा भी नॉलेज होना चाहिए इसमें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कौन सा टेंस में जाएगा ये भी देख, अगर सिंगुलर प्लूरल आप देना सेट कर ले, लेकिन बाद में फंस गया, प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा और पास्ट में होगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, हो जाएगा, ठीक है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश रेस्क्यूड। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला जहाँ पे ईच होगा, एवरी होगा, वहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। तो पहले सिंगुलर नंबर होगा तो इसको चेंज करो पहले, मतलब पहले सॉरी इसको एलिमिनेट कर दो, और काट दीजिए, ठीक है। और बाकी रहता है आपको हैज़, हैड, वाज, ओके। अभी आपको देखना है कि कौन सा टेंस में जाएगा, ठीक है। ये पास्ट में जाएगा, ठीक है, रेस्क्यूड लिखा है तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हैव बीन भी नहीं है, हैज़ बीन भी नहीं है, तो बीन नहीं है, वो प्रेजेंट में नहीं जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। तो देखो यहाँ पे हैड रेस्क्यूड तो नहीं होगा, ओके। पैसिव वॉइस में जाएगा, हैज रेस्क्यूड भी नहीं होगा, तो हो जाएगा वाज रेस्क्यूड, वाज रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, ओके। सो ये हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा वाज, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 का क्वेश्चन आंसर देखो। ईच बॉयज ऑफ द, ये आपको इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन 39 का। ईच बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, देखो ईच ऑफ द, मैंने बोला था ईच ऑफ द, निदर ऑफ, इधर ऑफ, ठीक, ऑल ऑफ, ये आपको ये देखना है, ईच ईच देखना है, ईच 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 ऑफ द बॉयज, बोलो बोलो फटाफट बोले, सिंगुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब इसमें बहुत सारे बॉयज हैं लेकिन एक स्टूडेंट को, एक बॉय के बारे में बोला जा रहा, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो पहले पूरा भाग को काट दीजिए, इसको काटिए, हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। अभी देखो ईज है आपका पास और हैज़ है, ठीक है। हैज़ एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं होता है, क्योंकि हैज़ मीन्स यू पॉजेस समथिंग, यहाँ पे बी वर्ब आएगा तो ईज हो जाएगा ना, मतलब वो कैसे हैं, वो एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ईज हो जाएगा आंसर, ये होगा राइट आंसर ईज। ये भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा, ओके। नाउ देखो, माच ऑफ द फ्लावर डैश फ्रेश, ठीक है, माच ऑफ द फ्लावर डैश फ्रेश। तो यहाँ पे माच लिखा है और फ्लावर इज अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स कि इसको आप गिन नहीं सकते हो, इसको आप वेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हो। तो जिसको गिन नहीं पाओगे ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। माच लिखा है वहाँ पे, वो भी एक क्लू दे रहा है आपको। पेन कहाँ गया, ओके। तो आपको ऑप्शन क्या रहेगा, एक सेकेंड, तो ऑप्शन आपको रहेगा देखो, अरे पॉइंट आ जा रहा है, कोई बात नहीं, देखो मार्च ऑफ द डैश फ्रेज, यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑप्शन बोलो। पहले तो आपको यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर में बोला, मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो प्लूरल वर्ब को एलिमिनेट कीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे वेयर एंड आर को काटिए, ठीक है। यहाँ पे हैड फ्रेज तो नहीं होगा, हैड मीन्स पॉजेस सम, टू पॉजेस समथिंग, हैव हैज कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे जैसे आई हैव ए पेन, क्योंकि आई पॉजेस दिस पेन, आई हैव ए रिच टॉयज, ओके। तो ये आपका आई पॉजेस, ओके, आई बिलोंग्स टू, दिस वाज बिलोंग्स टू मी, ओके। आई ओन दिस ओएस टॉयज, आई हैव दिस पेन, ओके। तो यहाँ पे पॉजेशंस मीन होता है, तो लेकिन यहाँ तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होगा, तो बाकी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इज सिंगुलर नंबर होगा। द एजुकेटेड डैश नॉट ऑलवेज वेल बिहेव्ड, देखो अच्छा से देखो, द एजुकेटेड, एजुकेटेड मीन्स वर्ड, ठीक है। जो लिटरेट पर्सन होता है, ठीक है, वो हमेशा वेल बिहेव्ड नहीं होता है, ये जनरल सेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहा है। तो ये एक टाइप का मतलब कॉन्सेप्शन, एक टाइप का मतलब वेल सेइंग, ठीक है। जैसे इस टाइप का इंसान कभी ऑयल बेप्ड नहीं होता है, हमेशा हमेशा ऑयल बेप्ड नहीं होता है, ठीक है।
जैसे वेल एजुकेटेड मतलब हमेशा उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिहेवियर डिपेंड होता है आपको एक्चुअली उसका मैनर्स के ऊपर, उसका मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो बिहेवियर आप बुकिश एजुकेशन आपके पास ज़्यादा है इसका मतलब आपको नहीं है, आपको नॉलेज बहुत है इसका मतलब आपका बिहेवियर भी आज बहुत अच्छा है, आपके पास जो आदमी है वो भी खुश है, ऐसा नहीं। बिहेवियर कम्प्लीटली अलग चीज़ होता है, नॉलेज कम्प्लीटली अलग चीज़ होता है। तो तो एडुकेटेड जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे एक्चुअली है, याद रखिए, एडजेक्टिव का पहले दा आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली प्लूरल नंबर में आएगा, क्योंकि ये होल कम्युनिटी के समझ रहा है। जो एजुकेटेड जो कम्युनिटी है कोई भी हो सकता है इसका, एक ग्रुप का समझा रहा है, ठीक है, उसको कैटेगरी का समझा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्चुअली प्लूरल नंबर। जैसे द रिच आर इन मोस्ट ऑफ द केसेस पुअर मेंटेलिटी, ओके, आर ऑफ पुअर मेंटेलिटी। तो यहाँ पे द एजुकेटेड हो जाएगा आपका एक्चुअली प्लूरल नंबर। एडजेक्टिव का पहले द आएगा तो हो जाएगा ये प्लूरल नंबर। तो पहले इसको काटिए, पास में तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा, आर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आशीष एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ पे मेन वर्ड देखना है, यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड एक्चुअली यहाँ पे आशीष है, ठीक है। आशीष जो है ना, ये आपका मेन वर्ड है, आशीष आपका मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। हेलोस कैसे होगा, हेलोस तो बेकार का दे दिया, तो लाभ भी नहीं होगा, लाभ्स होगा, क्योंकि लाभ सिंगुलर नंबर, आशीष सिंगुलर नंबर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ, और लगभग 38 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 78 क्वेश्चन हमें आज फिनिश करना है। तो टोटल आपको इस लेसन देखने के बाद आई होप दैट आपको एक बहुत नॉलेज मिल जाएगा, और इसी टाइप का एग्जाम्पल आपका बहुत एग्जाम में आता है, कॉमन एग्जाम में, ठीक है। और आई गिव द क्रेडिट टू द Samsung application because I have taken the question from that book for making you practice, okay. So the question answers credit goes to Samsung publications. This honestly I'm giving the credit to that publications. So for the better amount of the students with honest or noble mentality, I am just helping with the intention to help the students, okay. I'm explaining the question answers, okay. So the whole credit goes to Shatra publications, ओके, नो वरी। देखो क्वेश्चन आंसर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, मेनी फ्लावर्स डैश ओल्ड स्मेल। सिंपल आंसर है, यहाँ पे मेनी फ्लावर्स लिखा है ना, मेनी फ्लावर्स, तो मेनी फ्लावर्स मीन क्या, मेनी फ्लावर्स, पेन कहाँ चला गया, ओके। मेनी फ्लावर्स प्लूरल नंबर, तो सिंगुलर भाग को एलिमिनेट कर दीजिए, सिंगुलर को एलिमिनेट कीजिए, वाज नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, हैव होगा, ओके। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन फटाफट देखिए, ओके। एवरी कॉइन, एवरी सिंगल, एवरी पेनी अर्नड, ओके। तो यहाँ पे एवरी मीन सिंगुलर नंबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फटाफट हैव काट दीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये देखना है कौन सा टेंस में होगा, और कैसे होगा। तो ईज टू बी रिसाइकल्ड तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऐसा हमेशा करना चाहिए ऐसा नहीं है। तो वाज भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार हुआ था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग उल्टा लग रहा है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा हैज़, ओके। आपको करना पड़ेगा, हैज़ टू बी रिसाइकल्ड, आपके पास है, आपको रिसाइकल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, नीदर सुदीप्ता नॉर हर सिस्टर्स टू बी सामोंड, ओके। नीदर सुदीप्ता हर सिस्टर टू बी सामोंड, तो आपको देखना है एक्चुअली नॉर के बाद जो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर नॉर, ओके, ये देखना है, इसका अकॉर्डिंग आपको वर्ब डिसाइड करना है। तो हर सिस्टर्स यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल नंबर, तो इच काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए पहले, हैज़ भी नहीं होगा, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद आर है और ऑयल है, पास्ट में होगा और प्रेजेंट में होगा, ठीक है, पास्ट में होगा और प्रेजेंट में होगा, बोलो आंसर। वेल टू बी सामन नहीं होगा,
ये मीनिंग अलग हो जाता है, मतलब पहले उसको बुलाया था ऐसा नहीं। आर टू बी सामुंड, ठीक है। तो सुदीप्ता, निदर सुदीप्ता और हर सिस्टर्स आर टू बी सामुंड, ठीक है। सामुंड मीन्स किसी को तलब करना, किसी को बुलाना, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा है एक्चुअली द मेजोरिटी ऑफ द, एक सेकेंड, पेन थोड़ा मतलब गड़बड़ होता है कभी कभी। स्टार्ट हो गया। देखो, द मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर्स डैश नाउ एडिक्टेड टू एंड्रॉयड फोन्स। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको देखना है, मैंने बोला था एक बार, जो जहाँ पे दा आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आएगा ना, ये आपको यहाँ पर जो टीनेजर्स है ये नहीं देखना है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल किया था, द पुअर ऐसे और द रिच द ओल्ड ऐसे कुछ एग्जाम्पल था एक, क्योंकि वहाँ पे एडजेक्टिव था पहले। तो दा के बाद अगर एडजेक्टिव लगेगा तो इसलिए ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, ठीक है। दा के बाद एडजेक्टिव होगा तो ये हो जाएगा प्लूरल नंबर। तो ये देखो, क्योंकि ये फुल कम्युनिटी की मतलब एक ओवरऑल कॉन्सेप्शन को समझा रहे हैं। जैसे द रीच मीन्स ऑल द रीच पीपल, तो यहाँ पे एक्चुअली दे आर मेंशनिंग द होल कम्युनिटी, जहाँ पे कम्युनिटी को समझाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर। यहाँ पे द मेजोरिटी मीन्स एक्चुअली द प्लूरल नंबर, ओके, द होल कम्युनिटी, द होल टीनेजर्स, ऑल द टीनेजर्स, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेटली तो पास्ट में नहीं होगा। अभी देखो थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, पेन का थोड़ा इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। देखते हैं थोड़ा क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो ईज तो नहीं होगा, सिंगुलर नंबर नहीं आएगा, ओके। उसके बाद देखो, वास तो नहीं होगा, ओएल भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में नहीं जाएगा। एट प्रेजेंट ऑल द टीनेजर्स आर एडिक्टेड एक्चुअली, तो यहाँ पे आर लिखना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, जहाँ पे एडजेक्टिव होगा उसके पहले दा होगा, ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, क्योंकि इट मीन्स द होल कम्युनिटी, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल, पर्टिकुलर कैटेगरी। द ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ द ओल्ड पीपल डैश टू सिट ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एवरी मॉर्निंग इवनिंग। यहाँ पे देखो, ये लार्ज नंबर एक्चुअली, ओके, ये लार्ज नंबर, एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे ये लार्ज नंबर इट मीन्स एक्चुअली, इट मीन्स मेनी, a lot of, ओके, a lot of, many, a lot of, ऐसा होता है। ए लार्ज, ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, ए नंबर ऑफ इक्वल टू ऑल दिस थिंग्स, ये जो मैंने लिखा है इधर, मेनी, a lot of, ठीक है। ये एक्चुअली क्वान्टिफायर, मतलब ये नंबर ऑफ क्वान्टिफायर, इसको कहते हैं क्वान्टिफायर, मतलब ये क्वान्टिफाई कर रहे हैं कितना है एक्चुअली। ये नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, एक बात याद रखना, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ओके, ए नंबर और दा नंबर, ए नंबर ऑफ पीपल, दा नंबर ऑफ पीपल, इसका मीनिंग डिफरेंस क्या एक्चुअली, ठीक है। एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको याद रखिए, ए पी टी एस, ओके, ए पी टी एस, ए नंबर जहाँ पे होगा ये भार्ब हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि ए नंबर मीन्स एक्चुअली मेनी, आ लॉट ऑफ, ओके, तो ए हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, और जहाँ पे दा नंबर होगा उसके साथ सिंगुलर नंबर आएगा। तो इसी फॉर्मूला के लिए अप्लाई कीजिए आप, यहाँ पे दिखाओगे ए नंबर पर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे भार्ब प्लूरल होगा ना, ए नंबर अब लिखा है तो प्लूरल नंबर होगा, तो प्लूरल नंबर होगा तो काम्स तो सिंगुलर नंबर में आता है, और गॉन तो नहीं होगा यहाँ पे, और दे काम, एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, ओल्ड पीपुल काम टू सीड, तो काम होगा यहाँ पे, आर नहीं होगा, आर कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ए पी इक्वल टू टी एस, ए पी मीन्स आर नंबर, शॉर्ट में मैंने लिखा ए पी टी एस, ए पी इक्वल टू टी एस, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज, ए मीन्स यहाँ पे ए नंबर, उसके साथ पी मीन्स प्लूरल, और टी मीन्स दा नंबर, उसके साथ सिंगुलर, ए पी टी एस,
APTS, इसको याद रखें ऐसे, APTS, R number for plural and T the number, T for the number, उसके साथ आएगा S मीन सिंगुलर। ओके, APTS, इसको याद रखिए। ओके देखो, मोर देन वन लेडी डैश रिक्वायर्ड इन द किचन फॉर कुकिंग। मोर देन वन लेडी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, मोर देन वन लेडी। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पे कॉन्फ्यूजन के लिए, आपको जानबूझ के कॉन्फ्यूज कर देने के लिए आपके यहाँ पे मोर लिख दिया, मोर देन, ठीक है, मोर देन लिख दिया। लेकिन यहाँ पे बोला मोर देन वन लेडी, एक से ज़्यादा लेडी चाहिए, ठीक है, इन द किचन फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए एक से ज़्यादा लेडीज चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा वन लेडी, बोला मोर देन वन लेडी चाहिए। तो मोर देन देख के कोई घबराना नहीं है, क्योंकि ये इसका हमें कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे वन लेडी जो है ना, वन लेडी ये आपका मेन डिटर्मिनर और क्वांटिफायर, इसको देख के लिखना है। तो मोर देन वन लेडी इज रिक्वायर्ड, हैव को हटाइए, आर को हटाइए, इज रिक्वायर्ड। ओके, इज रिक्वायर्ड। हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन। ओके, हाफ ऑफ द मैंगोज, आपको पहले डिसाइड करना है। यहाँ पे डिटर्मिनर क्या देखोगे, हाफ, मैंगोज का हाफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन हेड वर्ड एक्चुअली मैंगोज, नॉट हाफ। हाफ एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। हाफ मीन्स जितना आपका मैंगोज है आपके पास, उसके आधा से आधा खराब हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द मैंगोज, मतलब मैंगोज का बारे में बोला है। अगर यहाँ पे मैंगो होता तो सिंगुलर होता, यहाँ पे मैंगोज लिखा है तो प्लूरल नंबर, तो वर्ब भी आपको हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, हैड रोटन तो नहीं होता है, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वर्ब नहीं है तो नहीं होगा। और मतलब ऐसे कोई पहुंचाता नहीं है, मतलब ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली वाज तो नहीं होगा, सिंगुलर नंबर में ये नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका आर रोटन, आर। ओके, 59 हो गया, 50 क्वेश्चन नंबर 59। हाफ ऑफ द चैप्टर, फिर सेम टाइप एग्जाम्पल देता है, हाफ ऑफ द चैप्टर, हाफ ऑफ द चैप्टर, द चैप्टर तो सिंगुलर नंबर है ना, तो आपको क्या लिखना है, सिंगुलर नंबर में लिखना है। तो पहले हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बाकी जाता है आपको हैड और इज, ठीक है। आप क्या लिखोगे, हैड फिनिश्ड और इज फिनिश्ड, क्या होगा यहाँ पे। एक्चुअली हैड फिनिश्ड मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि पास परफेक्ट टेंस उसी जगह में होता है जहाँ पे दो एक्शन होता है, ठीक है। हैड फिनिश नहीं आएगा यहाँ पे इज फिनिश्ड होगा। हाफ ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, क्वेश्चन नंबर 51, फिजिक्स इज माई डैश, मैंने आंसर बोल दिया ऑलरेडी, चलो बात नहीं। वेयर हैड तो और नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, ईज होगा आपका, ठीक है, ईज होगा आपका आंसर। फिजिक्स डैश इसमें पढ़ लेते, ईज होगा ना। फिजिक्स यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब ऐसा नहीं है कोई प्लूरल नंबर, फिजिक्स का ऐसे ही है, फिजिक्स का स्पेलिंग है ऐसा है, जिसका बीच में लास्ट में एस आता है, एस आता है, तो इसलिए इसको देख के कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इसमें तो सारी जगह में एस आता है ना, लास्ट स्पेलिंग आपको लास्ट लेटर एस आता है, तो ये सिंगुलर नंबर होगा, ऐसा नहीं सिंगुलर नंबर है। 1.5 पीसेस ऑफ द केक दैट अलॉटेड फॉर द गर्ल्स, ठीक है, 1.5 पीसेस ऑफ द केक, ऑफ केक allotted फॉर द गर्ल्स। आपको यहाँ पे देखना है एक्चुअली 1.5 पीसेस, ठीक है, 1 पीस दिया और उसके साथ और एक केक का हाफ पीस दिया, एलोटेड फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक चीज़ बोला था पहले, जहाँ पे एंड कनेक्टेड होगा बीच में और दोनों चीज़ मिल के सेम चीज़ को समझाएगा, तो उसी जगह में हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो 1.5, लेकिन जो क्वांटिटी में आ रहा है वो क्वांटिटी सिंगल में आ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी सेम चीज़ को समझा रहा है, ठीक है। ए पोर्शन ऑफ केक, द अमाउंट ऑफ केक, द वेट ऑफ केक,
ठीक है, ये हो सकता है 50 ग्राम, हो सकता है 100 ग्राम्स। तो एक अमाउंट के समझा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो 1 पीस ऑफ एप्पल एंड 1 पीस ऑफ केक, तो उसी जगह में एलोटेड आर एलोटेड होता, क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग चीज़, ठीक है, कॉम्प्लीटली। ऐसे 1 पेन एंड 1 बुक, तो इसी जगह में होगा आर एलोटेड। लेकिन यहाँ पे 1.5 पीसेस ऑफ द केक, मतलब केक का ही एक हिस्सा और एक पार्ट, तो इसलिए हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं जाएगा। कहाँ पे, अच्छा हैव तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, और आर तो नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज। ओके ओके, सेम क्वेश्चन देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड हो गया यहाँ पे। देयर आर, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था आपको, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया। देयर डैश ए लार्ज नंबर ऑफ काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड इन द मॉर्निंग। देयर डैश ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ काउस, तो ऑलरेडी यहाँ पे काउस लिखा है, तो इसमें मैंने बोला था देखो ए पी, ए पी मीन्स क्या होगा, पेन कहाँ चला जाते भाई, ठीक है, ए पी जहाँ पे होगा ना, ए ए मीन्स ए नंबर, पी मीन्स प्लूरल, सिंपल फार्मूला है, टी मीन्स द नंबर, उसके साथ एस आएगा, ठीक है, ए पी टी एस। तो यहाँ पे फटाफट लिख दीजिए, पेज थोड़ा क्वेश्चन, हाँ ओके। तो अब आंसर क्या होगा बोलो फटाफट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सिंगुलर नंबर में नहीं होगा, ये आपका ए पी मीन्स प्लूरल नंबर में जाएगा। तो पहले इसको हटाओ, सिंगुलर हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बाकी आपके पास एक ही ऑप्शन है ऑयल, तो ऑयल होगा। टू सीजर्स डैश केप्ट ऑन द सेल्फ, ओके, टू सीजर्स डैश केप्ट ऑन द सेल्फ, प्लूरल नंबर टू सीजर्स, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका एक्चुअली सिंगल नंबर को काट दीजिए, ओके, सिंगुलर नंबर को काट दीजिए, सिंगल नंबर को काटिए, सिंगल नंबर को काटने से क्या होगा, ए भी काटिए, सॉरी इसको, पेन थोड़ा, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, और उसको काटिए, और हैव केप्ट ऑन द सेल्फ, ठीक है, हैव केप्ट नहीं होगा, वाइल केप्ट बाई समवन एल्स, मतलब कोई ना कोई इसको सेल्फ में रख दिया था, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में आ जाएगा, वाइल केप्ट ऑन द सेल्फ। पैसिव वॉइस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नहीं तो इसको समझाने के लिए मुश्किल लगता है। पैसिव वॉइस जिसका क्लियर है, मैं नेक्स्ट क्लास में पैसिव वॉइस लेके आऊँगा, तो पैसिव वॉइस भी देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, हेयर डैश ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रंस, ओके, नहीं, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे बोला ए ग्रुप, ए ग्रुप बोल दे ऑलरेडी, तो बोल दे ए ग्रुप ऑलरेडी बोल दे, यहाँ इसको साथ नंबर के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है, ए नंबर अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दे ए नंबर अलग कॉन्सेप्ट है, ए ग्रुप, ओके, सिंगल सिंगल नंबर। यहाँ पे यंग चिल्ड्रंस का बारे में, चिल्ड्रंस तो प्लूरल नंबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रंस का एक ग्रुप, चिल्ड्रंस का यहाँ पे दो ग्रुप नहीं है, तीन ग्रुप नहीं है, चिल्ड्रन का दो ग्रुप होता तो यहाँ पे प्लूरल नंबर हो जाता है, यहाँ पे बोला एक ही ग्रुप चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन का इसको सारे चिल्ड्रंस को मिला है एक ग्रुप में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर नंबर। तो पहले इसको हटाइए, हैज़ कैसे होगा भाई, ठीक है, इज होगा, हेयर इज ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, ओके। मैनी मीन्स, ओके, मैनी मीन्स मतलब ओएज, यहाँ पे मीन्स ओएज, मतलब बहुत सारे अलग अलग कोशिश टाइप एफोर्ट किया, कोशिश किया, अलग अलग मतलब प्रोसीजर में इनको डिजीज़ को केयर करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली मैनी मीन्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल नंबर। तो पहले इसको हटाइए हटाइए हटाइए, तो हैव, प्लूरल नंबर तो हैव बीन चाइल्ड हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। मच मीन्स, ओके, रिक्वायर टू मेंटेन माय फैमिली। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे इसका जो, हाँ, इसका जो एक्चुअली क्वांटिफायर है ना मच, मैनी हमेशा होता है एक्चुअली काउंटेबल नाउन में आता है,
और आपको जो ये माज जो होता है एक्चुअली, माज आपको आता है सिंगुलर में आता है, माज आपको इसलिए अनकाउंटेबल, तो इसलिए सिंगुलर में होता है। मैनी मीन्स मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीका, अलग अलग उपाय इन्होंने निकल के रखा है टू रिकॉर्ड टू मेंटेन माई फैमिली। एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए इनके साथ बहुत सारे अलग अलग तरीका हैं। ठीक है, मच मीन्स इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इसको मास जहाँ पे होगा याद रखिए, मैनी सिंगुलर होता है, मैनी सिंगुलर, और माच होता है एक्चुअली, सॉरी, माच होता है एक्चुअली, अरे माच होता है प्लूरल। तो देखो यहाँ पे हो जाए, सॉरी सॉरी, मैनी होगा आपका प्लूरल, मैनी हो जाएगा आपका प्लूरल, और माच हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर। ठीक है, मैनी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और यहाँ पे माच जो लिखा है ये हो जाएगा आपका एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। और ये इसको थोड़ा देख ले लिखना है, इसका जो मैनी के साथ अगर सिंगुलर नंबर होगा तो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो आंसर हो जाएगा। आप ही देखो, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, पहले आर को काटिए, हैव को काटिए, ओके, हैज़ तो नहीं होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इज रिक्वायर्ड। ओके, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन माय फैमिली। हु इज ड्रेस डैश विथ योर कॉम्प्लेक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्शन मीन्स आपको जो स्किन जो कलर है तो उसके साथ कौन सा ड्रेस जाता है एक्चुअली। हु इज ड्रेस, तो हु इज ड्रेस ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर, हु इज ड्रेस, तो हो जाएगा आपका एक्चुअली सिंगुलर। गो तो प्लूरल हो गया, हैज़ तो प्लूरल हो गया, हैड तो नहीं होगा पास्ट में, गोज, हु इज डेज गोज विथ योर कॉम्प्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का आ गया, थोड़ा देखना है। ओके, 59 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का, चलो 59 का क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ शूज, ओके सॉरी, दिस पेयर ऑफ शूज डैश ओनली वन लेफ्ट फॉर द यंगेस्ट चाइल्ड। ओके, दिस पेयर बोला मीन्स द सिंगल, दिस मीन्स देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, दिस मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे दीज प्लूरल। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना है, दीज सिंगुलर होगा तो दीज प्लूरल नंबर होता है, दिस पेयर ऑफ शूज। ओके, यहाँ पे पेयर बोला, पेयर्स नहीं बोला, आपको शूज नहीं देखना है। इसका जो आइडेंटिफायर है, इसका सॉरी, इसका जो क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर अगर प्लूरल होगा तो ये यहाँ पे भी आपको प्लूरल लिखना है डैश में, लेकिन ये सिंगुलर में है तो आपको ये भी सिंगुलर होगा, आपको ये देखना है। यहाँ पे शूज़ का बारे में नहीं बोल रहा एक्चुअली, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पेयर्स है एक्चुअली, कितना पेयर्स है। ठीक है, एक पेयर, दो पेयर, थ्री पेयर्स, ऐसा यहाँ पे एक ही पेयर है, दिस ओनली वन, तो यहाँ पे सिंगुलर डेफिनेटली होगा। ठीक है, सिंगुलर होता, प्लूरल काट दीजिए पहले। ओके, अभी तक है, अभी तक सेल नहीं हुआ दुकान में, अभी तक बाकी है, तो वाज कैसे होगा, ईज है ना, प्रेजेंट में होगा ईज। देयर डैश 5 कार स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड। ठीक है, देयर 5 कार्स, ओके, 5 कार्स स्टैंडिंग, तो ऑन द क्रॉस, तो डेफिनेटली ये प्लूरल नंबर में होगा, तो प्लूरल नंबर में होगा तो क्या लिखोगे, सिंगुलर तो आपने काट दीजिए पहले, इसको काट दीजिए, हैव, देयर हैव 5 कार्स नहीं होता है, किसी का साथ, किसी का गाड़ी होता तो हैव होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। हैव होता है जहाँ पे पोजिशंस और ओनिंग टू समथिंग, यू ओन समथिंग, यू बिलोंग, समथिंग बिलोंग्स टू यू। ओके, यू पोजेस समथिंग, वहाँ पे हैव होता है, तो वायर होगा यहाँ पे सिंपली आंसर। आई डैश हु योर बेस्ट फ्रेंड विल नॉट लीव यू। ओके, इसका आंसर क्या होगा बोलो पहले। ओके, विल नॉट लीव यू, आपको क्या देखना है यहाँ पे, देखना है
आई हु का पहले जो कनेक्टर है उसका पहले जो एंटीसीडेंट होता है, ये आपका एंटीसीडेंट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसका अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा हु, आई एम हु। यहाँ पे इज नहीं होगा, इसका अकॉर्डिंग होगा, इसका अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सॉरी सॉरी, आई इज नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा आई एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है तो इज नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा। आई एम, आई एम, ओके। ये आंसर आपको इजीली होगा क्योंकि मैंने बोल चुका था ऑलरेडी। द ओल्ड एक एग्जाम्पल था प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किया वहाँ पे एक द ओल्ड ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। तो उसी में मैंने बोला था जहाँ पे एडजेक्टिव का पहले दा लगेगा तो यहाँ पे एक होल कम्युनिटी को समझाता है, मतलब द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेटली प्लूरल नंबर में आएगा, ठीक है। द रिच तो प्लूरल नंबर में जाएगा, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, ये सारे एडजेक्टिव का पहले दा लगता है तो ये प्लूरल नंबर होता है। तो आप ही बताओ, इज तो नहीं होगा, एम तो नहीं होगा, ठीक है। हैव कैसे होगा भाई, आर होगा, ठीक है, आर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी भार में आएगा, लिटिल ऑफ योर एफोर्ड, लिटिल ऑफ योर एफोर्ड एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप थोड़ा बताओ, आंसर सोच के बताओ, ठीक है। लिटिल ऑफ योर एफोर्ड, लिटिल ऑफ योर एफोर्ड डैश एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले बताओ सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। योर एफोर्ट का आप गिन नहीं सकते हो, योर एफोर्ट का आप देख मतलब इसको वेट नहीं कर सकते हो। एफोर्ट आप कितना एफोर्ट लगा रहे हो, आप इसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हो जाएगा आपका एक्चुअली क्या होगा, इसलिए हो जाएगा सिंगुलर नंबर। तो अभी भी इसको पहले हटाइए, हैज़ को काटिए, इसको डू को काटिए, लिटिल ऑफ योर एफोर्ट डैश एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आर तो नहीं होगा, ईज होगा, बी पार्ट में आएगा आंसर। वन ऑफ द फर्स्ट 10 इंटेलिजेंट मैन आर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द टोटल हमें 78 क्वेश्चन करना है, 64 हो गया ऑलरेडी। और 10-15 क्वेश्चन बाकी हैं, देख लीजिए फटाफट। वन ऑफ द फर्स्ट 10 इंटेलिजेंट मैन डैश आंसर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था यहाँ पे वन ऑफ द, जहाँ पे वन ऑफ द रहेगा ना, वन ऑफ द मीन्स यहाँ पे मैंने 10 इंटेलिजेंट पर्सन्स का नाम बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 10 जो 10 इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसमें मैं किसी का बारे में बोल रहा हूँ, वन ऑफ द। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द पेन्स, मतलब यहाँ पे 10 पेन से एक पेन के बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक का बारे में एक्चुअली बोला जा रहा है, ओके। वन ऑफ द फास्ट एंड इंसिडेंट मेंड, यहाँ पे तो हैव नहीं होगा, प्लूरल नंबर में नहीं आएगा। कहाँ पे है वन ऑफ द फास्ट इंटेलिजेंट, तो इसको काटिए पहले। हैव नहीं होगा, आर वाज तो नहीं, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, ठीक है। बी वर्ब में नहीं जाएगा, तो हैज़ आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आंसर होगा। वन ऑफ द फास्ट 10 इंटेलिजेंट मैन दैट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ टाइम एंड टाइड, ओके, डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइम डैश फॉर नन। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपसे एक्चुअली क्या होगा, इफ़, मैंने ऑप्शन आपको पहले बोला था, अगर एंड दोनों अलग अलग चीज़ को समझाएगा तो हो जाएगा प्लूरल, अगर दोनों एक चीज़ को समझाएगा तो हो जाएगा सिंगुलर नंबर। तो टाइम एंड टाइड ये एक्चुअली समझा जाए जो मूवमेंट, जो द पैसेज ऑफ टाइम, द पासिंग ऑफ टाइम, हाउ द टाइम इज मूविंग ऑन, द टाइम इज पासिंग फास्ट, दिस इज मीन्ड बाय दैट, ओके। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड एक्चुअली सिंगुलर आइडिया, एक सेम आइडिया, दैट मीन्स द पासिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिंगुलर एक चीज़ को समझा रहे हैं, द पासिंग ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा एक्चुअली सिंगुलर नंबर।
ठीक है। टाइम एंड चीज़ यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ को समझा रहा है, तो इस जगह वर्ड्स सिंगुलर नंबर में होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देयर डैश ए बिग बैनियन ट्री ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। ये सारे बेकार है, कहाँ पे है, किधर है, कहाँ है, ये कुछ नहीं है। ए बिग बैनियन ट्री, तो ये हो जाएगा आपका पूरा नंबर में तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। हैज़ हैव कैसे होगा, वाज होगा, बी भर में आंसर होगा। पहले था उसी जगह में राइट हैंड साइड, रास्ता का राइट हैंड साइड में एक बैनियन ट्री था। ठीक है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 स्टेप्स एक बुक का नाम है। ठीक है, 39 स्टेप्स कहाँ पे है पेन, ओके। 39 स्टेप्स एक बुक का नाम है, इसलिए एपोस्ट्रोफी में लिखा है, रिटन बाय जॉन बोचन। ओके, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका बुक का नेम, तो सिंगुलर नाम है, इसमें एस देख के नहीं घबराना है। ठीक है, तो ये बुक का नेम है, तो प्रॉपर नाउन में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली सिंगुलर नंबर में आएगा, तो ओ आर तो नहीं होगा, इसको पहले काट दीजिए। ओके, ये पैसिव वॉइस में एक्चुअली आएगा, हैज़ भी नहीं होगा, हैज़ रिटन बाई, हाँ वाज पैसिव वॉइस में ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे वाज रिटन बी वर्ब में आएगा, बाई पैसिव वॉइस में लिखा है एक्चुअली, तो ये हो, इसलिए हो जाएगा आपका बी वर्ब का आंसर हो जाएगा वाज रिटन। आ न्यू कार डैश, ओके, आ न्यू कार डैश लॉट ऑफ कैश। न्यू कार, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कॉस्ट, कॉस्ट, टेक, टेक्स। ओके बताओ, न्यू कार, इसमें बात है, पहले बताओ सिंगुलर होगा प्लूरल नंबर होगा। सिंगुलर नंबर होगा प्लूरल नंबर होगा। न्यू कार डैश लॉट ऑफ कैश, ऑप्शन बताओ पहले फटाफट। तो देखो यहाँ पे न्यू कार के साथ एक्चुअली अब आंसर क्या होगा आपको, देखो पहले टेक्स तो नहीं होगा, ठीक है, सॉरी टेक वर्ब तो नहीं आएगा। ये थोड़ा मतलब इनअप्रोप्रिएट है, इसको हटा दीजिए पहले सिंपली। उसके बाद देखना है सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, आपको ये देखना है न्यू कार, ठीक है, ये छाप दीजिए आपका। तो कॉस्ट सिंगुलर नंबर, इसलिए सिंगुलर कॉस्ट होगा ना। देखो देयर डैश रॉयल बंगाल टाइगर इन द जू। ओके, ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपका सब्जेक्ट। ओके, तो पास्ट में तो सॉरी ऑयल तो नहीं होगा, प्लूरल नंबर में नहीं होगा। अभी आपको देखना है ईज और आर। ओके, ईज और आर, ईज और आर में आपको ऑप्शन डिसाइड करना है। देयर डैश ए रॉयल बंगाल टाइगर इन द जू, आपको आंसर अगर आपसे लिखना है पास्ट का, तो ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो ईज यहाँ पे मुझे लगता है राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। देयर इज ए रॉयल बंगाल टाइगर इन द जू। ठीक है, एक ही रॉयल बंगाल टाइगर जू में है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ स्नेल डैश, और 8 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, आ स्नेल डैश वेरी स्लोली, आ स्नेल डैश वेरी स्लोली, तो ऑप्शन कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो मूव, रान तो नहीं होगा, रान टोटली इनअप्रोप्रिएट, इसको काट दीजिए, रान नहीं होगा। मूव और मूव्स, ये स्नेल यहाँ पे तो सिंगुलर नंबर है ना, तो मूव्स होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ट्रेन्स डैश मोर क्विकली देन बसेस। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन्स, ओके, ट्रेन रन होगा, ट्रेन गोज नहीं होता है। ठीक है, तो गोज को ट्रेन रन होता है, तो यहाँ पे ट्रेन्स प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पे रन होगा, रन्स नहीं होगा ना। ठीक है, जेन एंड हर सिस्टर डैश एट होम। ओके, यहाँ पे एक्चुअली दो अलग अलग पर्सन हैं, जेन एंड हर सिस्टर, लेकिन आपको यहाँ पे
दो अलग अलग पर्सन तो प्लूरल नंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव तो नहीं होगा, हैव मीन्स टू पॉजेस समथिंग, हैव नहीं होगा। इज तो नहीं होगा सिंगुलर नंबर में, वाज भी नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। आर एट होम। ओके। उसके बाद देखना है ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब डैश डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड। ऑल द मेंबर्स, ऑल के बाद मेंबर्स लिखा है तो प्लूरल नंबर में होगा। ऑफ दिस क्लब, इस क्लब का बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देर आर कितना क्लब्स है यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसी क्लब का जितने मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया, ऑल द मेंबर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाव आपका प्लूरल नंबर में होगा। तो हैड बीन तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि हैड बीन डिसाइडेड बाई समवन ऐसा नहीं होता है, उन्होंने खुद डिसाइड किया। तो हैड बीन कैसे आएगा, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा। तो हैज़ भी नहीं होगा, और वाज भी ए भी सिंगुलर में, ए भी सिंगुलर रहेगा। तो बाकी आपका ऑप्शन रहेगा हैव, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर, ठीक है। ओके। आ फोक ऑफ सीप डैश ग्रेजिंग, थोड़ा क्वेश्चन देखने दीजिए। ओके। और 5 to 6 क्वेश्चन आप देखिए फटाफट, ठीक है। हो जाएगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है थोड़ा कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। और किसी टाइप का क्लास आपको चाहिए बोल सकते हो। ए आ फोक ऑफ सीप, यहाँ पे देखो आ फोक ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। इसका सिप का प्लूरल फॉर्म सिप ही होता है, अलग सिप्स में ऐसा नहीं होता है। तो आ फोक, अगर टू फोक ए फोक हो तो इसको देखना है एक्चुअली। ए आपका क्वांटिफायर, ए आपका हेड वर्ड, तो इसका हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा। तो पहले पूरा नंबर हटा दीजिए, हैं। हैज़ तो नहीं होगा, ठीक है। ईज और वाज में होगा। ओके। ईज गेजिंग इन द फील्ड, ये आपका आंसर होगा। पास का कोई रेफरेंस नहीं दिया इसलिए पास प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, या फिर ईज एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ईज गेजिंग इन द फील्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वन डैश टू वंस ड्यूटी, वन, देखो वन यहाँ पे लिखा है तो वन पेन कहाँ गया। ओके। वन आपका सिंगुलर नंबर है ना, वन आपका सिंगुलर नंबर है, ये आपको देखना है वन। ओके। वन आपका सिंगुलर नंबर होगा, तो आर तो नहीं होगा, हैव तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब वन इज टू डू वन टू इसे अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट लगता है, मतलब बी भर में नहीं आएगा। ये किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि करना पड़ता है ऐसा नहीं, मतलब करना पड़ेगा ऐसा, इस टाइप का मीनिंग आएगा। वन हैज़ टू डू वंस ड्यूटी, उन एक का उनका उन्होंने उनका उनको ड्यूटी करना पड़ेगा, करना पड़ता है नहीं, ठीक है। ईदर ऑफ माई ड्रेस और माई बैग डैश ऑलवेज ऑन फ्लोर, ऑप्शन इधर दे दिया देखो। इज, आर, वेयर, हैज़, कौन सा होगा। मैंने बोला क्या आपको, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोल चुका है यहाँ पे, जहाँ पे और के बाद देखना है आपको, और के बाद देखना है माई बैग, क्या लिखोगे आप, माई बैग और माई बैग। यहाँ पे क्या लिखोगे, माई बैग, माई बैग, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर तो नहीं जाएगा, आर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका हैज़ ऑन द फ्लोर कैसे होगा, इज ऑन द फ्लोर, ठीक है। एनी डैश नो द आंसर, सिंगुलर नंबर है ना, तो डोंट कैसे होगा, हैड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो लिखा है, नोन होता तो देखा जाता था। और यहाँ पे हैव तो नहीं होगा, तो डज नॉट नो द आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज चैप्टर आज क्लास का, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स टू विन, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स टू विन। तो मैंने बहुत बार बोल चुका था यहाँ पे, जहाँ पे एज वेल एज होगा, ठीक है, उसके पहले ये देखना है, अगर एज वेल एज का पहले जो सब्जेक्ट है उसका नंबर देखना है। ए सिंगुलर में है तो सिंगुलर होगा, अगर ए प्लूरल में होता है ए प्लूरल होगा। उसके एज वेल एज के बाद क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको कुछ फर्क नहीं आता है। प्लेयर्स है इसका कुछ मैटर नहीं, इसको देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखना चाहिए आपको, द कैप्टन,
कैप्टन सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर होगा ना। ओके, लीड तो नहीं होता है, लीड यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ब्स आगे छोड़िए, टोटल काट देते पूरा लीड का जितना भी है। उसके बाद देखना था कैप्टन, वन तो प्लूरल में हो गया वंस, ठीक है वंस। उन्होंने चाहते हैं मैच जीतने के लिए जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर्स टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप दैट इससे इसके अलावा ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है, इतना ही है। इसी टाइप का एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट, ठीक है, जो उस टाइप का क्वेश्चन आता है वहाँ से प्रैक्टिस करवाया, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, डोंट वरी। अगर इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट का फॉर्म में क्वेश्चन लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं फिर भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आपको एक भी डाउट, किसी भी जगह में डाउट नहीं रहेगा, टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला के साथ, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको किसी भी एग्जाम में टेंस, ये जो सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट एरर करेक्शन का रूप में भी आता है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चैनल सब्सक्राइब कर रखिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर इतना एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो इतना भी मैं होप कर सकता हूँ, तो आप भी मुझे हेल्प करोगे क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक दैट यू आर द मेन motivator to me, so you can help me by supporting, by subscribing to my channel and by sharing, and you can also help me to grow up and to spread the knowledge. So thank you all of you. I hope that this lesson has been clear to you, and if there is any doubt still now, you can write in the comment sections so that I will read and I will reply it, and I will make the new lesson for you for in upcoming time. Okay, so that's all for today. Have a good night. Thank you. Bye. Take care.